अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज नए लेसन के साथ आई एम योर ज्योग्राफी टीचर एंड टुडे इज़ 26 April 2021. Day is Monday and today I'll guide you about exercise of chapter 2 agents of landform change. इसमें पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। आई होप कि आपने कॉपी पेंसिल नोटबुक कॉपी पेन नोटबुक everything is with you, so you can write down the answers. Okay, give short answers. इसके बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर्स के बारे में गाइड करूंगी। लॉन्ग आंसर्स आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, जो शॉर्ट है वो मैं आपको करवाऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीट बाय गार्डन। व्हाट इज मेंट बाय यार्डन? ये विंड का एक इरोजनल फीचर है। सो वी विल राइट आंसर इज, आप अपनी नोटबुक्स पे ये नीट राइट डाउन करेंगे। ऊपर टॉप पे आपने डेट भी मेंशन करना है, चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर। एंड हम इन स्कूल जो है आपसे इन बुक्स को नोटबुक्स को मंगवाएंगे हम लोग, और फिर इसको चेक भी किया जाएगा, मींस फिजिकली भी इनको चेक किया जाएगा। सो मेक इट श्योर कि आप ये काम ज़रूर करें। ओके, समटाइम्स a series of hard and soft rocks are present side by side on Earth's surface uneven means not equal, even erosion। जब हार्ड होगी साथ सॉफ्ट और हार्ड इनसे के साइड बाय साइड होंगी तो डेफिनेटली फिर जो इरोजन होगा वो अनइवन होगा। अनइवन इरोजन ऑफ विंड, अनइवन इरोजन ऑफ विंड ट्रांसफॉर्म these rocks in irregular shapes और इन शेप्स को हम यार्ड कहते हैं, और यार्ड Yardens plural, yarden one. So when there is a series of hard and soft rocks side by side on Earth's surface, uneven erosion of wind transform these rocks in irregular shapes called yarding.
So this is our first short answer. Now the next question is second one, how spit bar is formed. Spit bar जो है is a depositional feature of sea waves. So how spit bar is formed? Its answer is when sea waves, answer sea waves deposit sand on the coast sometimes a day with it vehicles along a coast and the sand ridge extends in front of a bay, and the sand ridge extends in front of a bay. It is called spit bar. So I can show you this depositional feature in the diagram as well. Look at this. This is sea water, और जब ये स्पिट बार इस तरह elongated बन जाए तो इसको स्पिट बार कहते हैं. So third one, our question is how Oxbow Lake is formed. Oxbow Lake जो है ये वाटर का रिवर का एक depositional feature है. How Oxbow Lake is formed? Its answer is, as I told you, is depositional feature of it's erosional feature of river. So answer sometimes river after cutting the outer, I told you it's erosional feature, इसलिए after cutting the outer bands, बाहर वाले किनारे जब रिवर अपने जो है वो कट कर देता है of the meander, the outer bands of the meanders, attain us water attains a straight channel
behind a crescent like crescent like or crescentic lake at this site. This is called Oxbow Lake. इसकी crescent like shape होती है. This is called Oxbow Lake. And we can look at the diagram in the book. Water is coming and ये अपनी आउटर एजिस की कटिंग करके इसको अलग कर देता है, तो ये क्रिसेंट लाइक शेप बन जाती है और इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं. और ये रिवर इंडस पर एक कैलरी जो है हमारी बहुत मशहूर लेक है, वो इसी शेप की और वो ऑक्सबो लेक है वो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज फोर्थ वन. What is meant by coast? वैसे हमारे एक जनरल नॉलेज में हमें ये बात पता है कि कोस्ट किसको कहते हैं. लाइक कराची इज़ ए कोस्टल सिटी, बॉम्बे इज़ ए कोस्टल सिटी जो समंदर के किनारे होते हैं. सो कोस्ट इज़ अ फीचर, a depositional feature of sea waves or sea water. Its answer is sea waves deposit sand over the land adjacent to the sea, जो बिल्कुल समंदर के साथ जगह होती है वहाँ पे जब पानी सी वेव्स जो है समंदर का पानी अपना डिपॉजिट करता रहता है मटेरियल को, तो उसको वहाँ पे एक प्लेन स्मूथ एरिया बन जाता है, उसको कोस्ट कहते हैं. और वहीं पे कोस्टल सिटीज़ जो हैं वो आबाद होते हैं. Adjacent to the sea, due to this deposition, a smooth plane is formed known as coast. और जो कोस्ट हैं ये फॉर सेंचुरीज इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कशिश का सबब रहे हैं. एट द एंड ऑफ दिस लेसन मैं आपको कोस्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट short question answers of our exercise. Now I'll guide you about the long questions, long answers, questions जिनके हमने long answers करने हैं. आपकी बुक में जो दिए गए हैं जहाँ पे give detailed answers, उसमें फर्स्ट वन है describe different landforms made by river. आपने इसमें
जो लैंड रिवर के डेपोजिशन इरोजनल एंड डेपोजिशनल जो फीचर्स हैं वो आपने सब लिखने हैं। ठीक है, आप इतनी फॉर एग्जांपल वाटरफॉल की आप इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, लाइक जो उन्होंने दी हुई है। ठीक है, इतनी लिखने की बजाय आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने सब फीचर्स जो इन्होंने दिए हुए बुक में 4 दिए हुए हैं डेपोजिशनल इरोजनल फीचर्स दिए हुए हैं एंड देन 3 डेपोजिशनल, ऑल टुगेदर 5 आपके जो है रिवर के फीचर्स हैं जो कि आपने सारे के सारे लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन, सेकंड वन, एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म्स मेड बाय वैली ग्लेशियर। अब हमने पढ़ा है कि 2 टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स हैं, कॉन्टिनेंटल एंड वैली। तो आपने वैली ग्लेशियर्स जो है उसके जो डिपोजिशनल एंड इरोजनल फीचर्स जो है वो उन्होंने ये दिए हुए हैं। वैली ग्लेशियर्स इरोजनल फीचर्स हैं फर्स्ट, ठीक है, और ये आपने लिखने हैं एंड देन आपने फिर इसके डिपोजिशनल फीचर्स हैं। इन्होंने इरोजनल फीचर्स दिए हुए 5 एंड डिपोजिशनल जो हैं वो 3 दिए हुए। तो आपने ये ऑल सब लिखने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, लेकिन आप उनकी जो डिटेल है वो थोड़ी कम कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट वैली ग्लेशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड। अब विंड के भी इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स जो बताए गए हैं वो आपने सब लिखने हैं। आपने इनमें से वो नहीं करना, स्किप कोई नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग कि जैसे ये इन्होंने डिफरेंट विंड जो है वो डेजर्ट्स में एक्टिव होती है, ठीक है, एज ए एक्टिव एजेंट। तो आपने ये सारा जो है वो लिखना है एंड इफ़ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम तो ये एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट होगा आपके आंसर पे। ठीक है, और ये इजी है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आप देखें कि दे हैव टोल्ड अस 5 ड्यून्स और ये डिफरेंट टाइप्स, और उनकी शेप्स दे आर वेरी इजी, और उनके नाम भी जो है वो उनकी शेप के मुताबिक है, इसलिए इट्स इजी टू मेमोराइज एज। सो इट्स आवर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स। देन द लास्ट वन, इसमें अगेन जो सी वेव्स के इरोजनल एंड डेपोजिशनल लैंड फीचर्स हैं वो हम बनाएंगे भी और लिखेंगे भी डायग्राम, और ये आपके इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं, ये ऑल टुगेदर 4 इरोजनल हैं एंड डेपोजिशनल जो है दे आर 3 डेपोजिशनल। ठीक है, यू विल राइट फ्रॉम द बुक, बट फर्स्ट I have explained it to you, so you will write in your own words. Okay, next is here we have MCQ. Tick the correct answer. इसमें mushroom rock is formed by wind. Landforms made by wind are found in desert areas. As I told you कि जो विंड है वो डेजर्ट्स में जो है वो डेजर्ट्स में एक्टिव एजेंट है। द बार्ड विच कनेक्ट्स द कोस्टल एरिया विद एन आइलैंड इज कॉल्ड टोम्बोलो। रिवर फॉर्म्स अ वी शेप्ड वैली इन माउंटेन्स। यू शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। सो यू विल अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन योर बुक। नाउ आई टोल्ड यू कि हमने कोस्ट का बारे में पढ़ा है कि जो कि एक सी वेव्स का जो है फीचर है। तो आई वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट कोस्ट। जो कोस्ट हैं वो फॉर सेंचुरीज इंसानों के लिए अट्रैक्शन का रीज़न रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पानी जो है वो इंसान के लिए बहुत यूज़फुल है, और पानी में सी वाटर में जो मछलियाँ फिश पाई जाती है दैट इज़ सोर्स ऑफ food for the human beings. That's why for centuries human beings they prefer to settle around the coast. और आज भी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं along the coast हैं। पाकिस्तान का सबसे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है? मेरा ख्याल है आप इसे अक्सर बच्चे जानते हैं जी, दैट्स कराची, और ये along the coast है। इंडिया में बॉम्बे है, along the coast है। ओके, सो जो कोस्ट है वो
सी वेव्स का एक फीचर है, डिपोजिशनल फीचर है, और ये सोर्स ऑफ सेटलमेंट एंड सोर्स ऑफ इनकम फूड भी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।